Good morning students. Welcome back to our next part of class 7th English. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will read part 4th of chapter 4th, The Ashes That Made Trees Bloom. So you remember we were reading this chapter, a Japanese folk tale about an old couple who did not have any child of their own, but they had a dog, Myuko, which was their beloved and they loved him and had an affection as if it was their own child. The old couple used to do farming in the rice fields. They earned their livelihood from working as a farmer in the fields. One day, the dog found a treasure for them and they became rich. They were so kind at heart, very kind at heart, that they helped the poor neighbors who were nearby their house, and they also gave everyone a big feast on that occasion. They also distributed some amount of gold coins to the poor neighbors. They bought a piece of land for themselves. Due to all this, the neighbors got very envious. They got very jealous of their prosperity. Then what happened? The jealous neighbors or the wicked neighbors, they asked the dog to find something for them also. But the wise dog Myuko was not at all convinced by the wicked neighbors. One fine day, they put something very delicious for the dog to eat. But he refused to do that. So they dragged the dog to a field and asked him to find some gold for them also. The dog started scratching the ground and the old wicked couple, very happy in seeing that, they started digging the ground with the hoe and the spade. But they found a foul smell of the dead kitten lying buried under the soil. They were very angry with the dog. They killed the dog on the spot. They separated his neck from the body. They chopped off his neck and they buried the dog under the pine tree and heaped the soil over his dead carcass. Okay? Carcass, you all know, dead body. Then the dog was dead and the old couple who was kind enough, they had a dream about that dog, that the dog is saying, you do one thing, cut the pine tree which is behind my grave and make a mortar and a mill out of it. To prepare what? To prepare the bean sauce as well as rice pastries. Okay? So, the old couple did whatever said by the spirit of the dog. See, the dog helped them even after his death. He loved his master and mistress so much that he helped him even after he died. So, the old man made a mortar and a hand mill out of that pine tree wood and he began to process the rice pastries. The old woman boiled some rice, then she put it into the mortar. The old man started pounding the rice. Pounding means usko grind करना, उसको pieces में करना and to make it a soft dough. उसको एक अच्छा सा गूंदा हुआ boiled rice का आटा लगाया. And they also did what? They tried to make the bean sauce. Then what happened, beta? It was to their surprise that the dough of the boiled rice as well as the bean sauce turned into heaps of gold. Okay? Both of them, they turned into the heaps of gold coins and they were very much surprised again. Okay? But they knew that the spirit of the dog has helped them. Okay? Now, the old neighbor, okay, the old couple who was a wicked old neighbor of that kind couple, he did what? Did he came to know about this thing or not? उसको ये सब पता चला कि नहीं? नहीं. चलो हम देखते हैं स्टोरी में. अभी तक हमने पढ़ा बेटा हमारे लास्ट 3 पार्ट्स में एक ओल्ड कपल था, एक बुजुर्ग दंपति रहते थे जापान में. उनके पास कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने एक डॉग को अपना पेट बना लिया था और वो उसको अपनी संतान की तरह ही प्यार करते थे. एक बार जब वो खेत में गए
राइस के खेत में गए, चावल के खेत में, तो डॉग उनको घसीट कर कहीं लेकर गया। उनका जो डॉग था म्यूको, वो उनको कहीं लेकर गया, जहाँ पर जैसे ही उन्होंने खोदा ज़मीन को, उनको एक ढेर मिला सोने के सिक्कों का। तो क्योंकि वो आदमी बहुत काइंड था, तो उसने क्या किया, कुछ पैसे से अपने लिए एक ज़मीन खरीदी, बाकी पैसा जो आसपास में पुअर उसके नेबर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया, और लास्ट में क्या किया, जो पैसा बचा उससे उन्होंने सबको एक अच्छी सी दावत दी। इस बात का पता चलते ही एक उनके बुरे पड़ोसी थे जो बहुत लालची थे, उनको पता चलते ही उन्होंने क्या किया, उस डॉग को जो म्यूको था उसको अपने पास बुलाने की कोशिश की। तरह तरह की चीज़ें उसको खाने के लिए देते थे, पर डॉग कभी नहीं माना। फाइनली वो डॉग को घसीट कर लेकर गए फील्ड्स में और उससे कहा कि हमारे लिए भी कुछ धन ढूंढो। तो डॉग ने ऐसे ही मिट्टी में स्क्रैच करना स्टार्ट किया और फिर उसको क्या मिला, एक डेड किटन, मरी हुई बिल्ली का बच्चा। तो बहुत गंदी बदबू वहाँ पर आई, तो उन लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने ऐसे सोचा कि इस डॉग ने हमको बेवकूफ़ बनाया है, और उस गुस्से में उन्होंने उसी समय उस डॉग की हत्या कर दी। उसकी गर्दन शरीर से अलग कर दी और उसको वहीं पर मिट्टी में गाड़ दिया। जहाँ पर उसको गाड़ा था उसके जस्ट पीछे एक पाइन ट्री था, ठीक है। अब जब उसके मालिक को पता चला कि डॉग मर चुका है, उसको बहुत बुरा लगा। वो उसकी ग्रेव पर गया, उसने कुछ उसके फ्लावर्स लगाए, कुछ अगरबत्तियाँ जलाई, कुछ खाने पीने का सामान रखा और उसको प्यार के नामों से पुकारने लगा। बहुत दुख हो रहा था उसको। उसी रात सपने में डॉग का स्पिरिट आया और उसको कहा कि मेरी ग्रेव के पीछे जो पाइन ट्री है उसको आप कट करो और उससे एक मोर्टार बनाओ, बोल बनाओ और एक हैंड मिल बनाओ बीन सॉस बनाने के लिए। नेक्स्ट डे वही किया, बुजुर्ग दंपत्ति ने बनाया और फिर जैसे ही चावल उबाल के उसमें डाले और उसको कूटना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, वो जो राइस था इट टर्न्ड इनटू गोल्ड कॉइन्स। और सिमिलरली जो हैंड मिल से बीन सॉस निकल रहा था उसकी भी जो ड्रॉपलेट्स थी वो क्या बन गई, गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो गई। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, सो कम अलॉन्ग, होप यू ऑल अंडरस्टूड द लास्ट 3 parts very well. Come along, we will start this part today. First we will take the hard words. First is envious, wanting something that somebody else has. Envious मतलब ऐसी भावना रखना कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ओके, a type of feeling where you want what somebody else has. अच्छा, उसके पास ऐसी पेंसिल है मुझे भी चाहिए, अच्छा वो ऐसे बैग लाता है मुझे भी ऐसा बैग चाहिए, ऐसी वाटर बॉटल आई ऑल्सो वॉन्ट दैट। ओके, सो दिस इज वॉट एनवियस मीनिंग इज। ड्रिप, ड्रिप मीन्स बूंद बूंद करके गिरना। यूज्ड अबाउट लिक्विड, टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स। ओके, ड्रिपिंग मीन्स एक एक बूंद करके नीचे गिरना। स्टिंगी मीन्स माइजरली, माइजरली क्या होता है बेटा, कंजूस। Okay, miser means somebody who don't want to waste money. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. Now see, they were so envious that they peeped through that window. Peeped मतलब उनकी विंडो में झांक के देखा। जो बुरे और लालची नेबर्स थे उन्होंने झांक के देखा कि क्या चल रहा है उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर में जिनका डॉग मर गया था। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा, बॉइल्ड बीन्स वर बीन ग्राउंड, और जो बीन्स थे वो जब बॉईल कर लिए थे उनको पीसा जा रहा था, ये उन्होंने देखा खिड़की से झांक के। ओके, व्हेन दे पीप थ्रू द विंडो दे सॉ दैट द बॉइल्ड बीन्स वर बीन ग्राइंड। ओके, "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. She said, "Oh my!" Goody me means मतलब she is amazed. Oh my! बोलते हैं ना अपन, oh my बोलते हैं ना, सरप्राइज में हम ऐसे बोलते हैं। Similarly, she is crying, अरे वाह, ये क्या हो रहा है। जो वो ड्रॉपलेट्स देख रही थी बीन सॉस के जो नीचे गिर रहे थे,
they were turning into gold coins. जो ड्रॉप्स बीन सॉस के नीचे गिर रही थी वो गोल्ड कॉइन्स में चेंज होती जा रही थी. Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. तो टब क्या था बेटा? टब रखा हुआ था ना, उस जो हैंड मिल था जिसमें बीन सॉस बना रहे थे उसके नीचे ऑब्वियसली टब ही रखना था, क्योंकि कुछ लिक्विड सेमी लिक्विड चीज़ नीचे गिरनी थी, है ना, तो वो फैले नहीं इसलिए टब रखना था. नाउ when the drops of the bean sauce are coming out from the hand mill, they are turning into gold coins. ठीक है, ऐसा उस लालची नेबर ने देख लिया था. ठीक है, और क्या हो रहा था? It was turning into a mass of gold. mass मतलब बहुत बड़ी सी चीज़. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो होती है, that is called mass. So the old couple were rich again. ठीक है, अब डॉग के स्पिरिट ने उनकी हेल्प की, है ना, एक उनको आइडिया दिया, एंड व्हेन दे फॉलोड द आइडिया दे फॉर्चुनेटली गॉट रिच अगेन. वापस से वो पैसे वाले हो गए थे. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल. अब आपको पता है उस नेबर के माइंड में खुजली चलने लग गई थी. ठीक है, शी वॉज अप टू समथिंग. क्या? उसने सोचा क्यों ना मैं इनकी ये मोटर और हैंड मिल को मांग लूं, है ना, और फिर मैं भी बहुत सारा सोना बनाऊं, क्योंकि प्रोसेस तो उसने देख ही लिया था. शी हैड सीन व्हाट वाज ऑल गोइंग ऑन विद द मशीन्स, राइट. सो शी वेंट टू द नेबर नेक्स्ट मॉर्निंग, और क्या किया? शी बोरोड द मोटर एज वेल एज द मिल टू मेक द राइस पेस्ट्री एंड द बीन सॉस. उसने वो मांगा और अपने घर लेके आ गई, ये लालच में कि मैं भी कुछ बनाती हूँ. ठीक है, और बहुत सारा गोल्ड मेरे पास हो जाएगा. दे फिल्ड. हु आर दे? दे कौन है? जो विकेड या जो लालची नेबर हैं वो दोनों, हस्बैंड वाइफ. ओके, बोथ ऑफ देम. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, वन वॉट? मोर्टार. मोर्टार में क्या किया? दे फिल्ड इट विथ बॉइल्ड राइस. एक में तो उन्होंने बॉइल्ड राइस भरा, एंड द अदर, व्हाट वाज द अदर? इट वाज द मिल विथ बीन्स. और उस मिल में क्या डाले उन्होंने? बीन्स, टू प्रिपेयर द बीन सॉस. क्योंकि मोर्टार से तो उनको बॉइल्ड राइस का आटा बनाना था जिससे वो पेस्ट्रीज बनाते, और जो हैंड मिल था उसमें बीन्स डालने थे ताकि वो बीन्स सॉस बना सके. देन द ओल्ड मैन began to pound and the woman to grind. Pound, I told you, किसी चीज़ को क्रश करना, उसको महीन महीन चीज़ों में, टुकड़ों में करना. ठीक है, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से क्रश करना, उसको बोलते हैं पाउंड. एंड द वुमन टू ग्राइंड. ग्राइंड भी सेम चीज़ है. ठीक है, पाउंड वो ज़ोर ज़ोर से उनको ठोक के कर रहे थे, और ग्राइंडिंग वो ऐसे कर रही थी, उसको बीन्स को कर रही थी. ठीक है, सो दे वर अप टू समथिंग. दे वांटेड टू मेक गोल्ड कॉइन्स फॉर देमसेल्व्स. ओके, आपको लगता है वो बना पाएंगे अपने लिए? अभी अपन पढ़ते हैं. लेट्स सी द मीनिंग्स फर्स्ट. फाउल मीन्स, यू ऑल नो, विच स्मेल्स वेरी बैड. एक बहुत गंदी बदबू. दैट स्मेल्स और टेस्ट्स डिस्गस्टिंग. ओके, इट कैन बी अ टेस्ट ऑल्सो, इट कैन बी अ स्मेल ऑल्सो. फाउल मतलब बहुत सड़ा हुआ सा. मास, a large amount or number of something. मास आपको पता है, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होना. ठीक है, ओके. बट एट द फर्स्ट ब्लो, जैसे ही पहली बार उसने ऐसे ब्लो किया, मारा, एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस turned into a foul mass of worms. See what happened? When they started pounding the rice pastry as well as the beans, they started grinding the beans for the bean sauce. What happened? They changed into a foul mass of worms. सड़े हुए कीड़ों का ढेर बन गया था वो. ठीक है, it turned into a foul mass of worms. worms आपको पता है, कीड़े मकोड़े, और foul mass मतलब सड़ा हुआ, स्मेल करने वाला और बहुत सारे. ठीक है, ये हो गया.
गोल्ड तो नहीं मिला पर कुछ और ही मिल गया. You know why? Because it was their greediness which make them do so. और इससे हम ये लेसन सीखते हैं कि if we are greedy, we are going to get bad results for anything. ठीक है, हमको कभी हम जो चाहेंगे वो नहीं मिलेगा, हमें वो सब मिलेगा अगर हम हार्ड वर्क करेंगे. Everything in life we can get, but only and only with hard work. ग्रीडीनेस से नहीं, किसी और के पैसे से, किसी और की चीज़ से हम खुश नहीं रह सकते बेटा. जो हमारी अर्नड होता है वो ही हमें खुश रख सकता है. ओके, तो ये आपने देख लिया जो रिजल्ट अभी हुआ है. दूसरे से मांग के लाई, दूसरे ने अपनी मेहनत से वो चीज़ बनाई ना, और फिर फल तो उनको मिला, लेकिन इन्होंने दूसरे की चीज़ पे लालच रखा, इनको फल मिला, बुरा फल मिला. ओके, सो गॉड इज looking at each and every one. Okay, so he wants everyone to work hard on their own and we should not be greedy. ये हम lesson यहाँ सीख रहे हैं. So everyone remember this thing. Still more angry. First time कब angry हुए थे बेटा ये? They got angry when the dog took them to the field and they found some dead kitten. Okay, तब angry हुए थे और उन्होंने क्या किया था, उस dog को finish कर दिया था. They killed the dog on the spot. Still more angry. Now they are again angry. Okay? At this. At what? At all this which is happening with them. मोटार और जो मिल था उसने जो फाउल मास ऑफ वर्म्स का दिया, जो सड़े हुए कीड़ों का ढेर उनके घर में लग गया, इसको देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आया. They both were very angry. They chopped the mill into pieces to use as firewood. Again what they did? Firstly they chopped the head of the dog Muko, and now because they were very angry, what did they do? They chopped off the mill and the mortar. टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके लकड़ी के और उसको रख दिया फायरवुड के पास जलाने के लिए. ठीक है, जहाँ फायर प्लेस होती है घर में, कोल्ड कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, लकड़ियाँ जलाने के काम में लेते हैं ताकि हमारा जो घर है वो वार्म रहे. ठीक है, तो उस मोर्टार और मिल को उन्होंने चॉप करके, टुकड़े टुकड़े करके अपने घर में रख लिया ताकि वो उसको जलाने के काम में ले लें. सी हाउ एंग्री दे वर. ठीक है, बट गुस्सा कभी भी कोई रिजल्ट आपको देता है क्या? नेवर. ठीक है, यू शुड नेवर बी एंग्री ऑन एनी ऑफ द सिचुएशन यू आर फेसिंग. ऑलवेज बी पेशेंट एंड काम. सब कुछ अच्छा होगा. बट एंग्री एंड एंगर विल ऑलवेज मेक यू लुक डाउन. ठीक है, हमेशा आपके साथ गलत होगा अगर आप गुस्से में कुछ डिसीजन लेते हैं तो. सो टिल हियर वी हैव रेड. नाउ we will do the first part of questions, that is comprehension check, in next part. Okay, so come in the next part, join the class. Until then, take care, have a great day beta.